Okay, next concept is resonance energy. Now, this is a concept which is developed in order to analyze the stability of any molecule that undergoes resonance. Resonance is a phenomenon which we will be studying in detail in chemical bonding and also in organic chemistry. As of now, just remember that it is a phenomenon. So, resonance is a phenomenon which is directly related to the stability of a molecule. That means more effective is the resonance, more is the stability of the molecule. Okay. Now, resonance energy is to be calculated in numericals. Sometimes they ask us to calculate resonance energy. This is the actual definition of resonance energy. But this definition may not be clear to you now because you don't know the meaning of resonance hybrid and the most stable resonating structure. So as of now, just learn the definition, focus on the calculation for the time being. Once you are thorough with the whole concept of resonance, that time you will be able to understand the definition. But you must know how to calculate resonance energy. So start writing. Okay. This is a formula for calculating the resonance energy. We will focus on this part because we want to find out the value of resonance energy. Resonance energy is equal to 1 मिनट के लिए स्क्रॉल अप कीजिए. हाँ
This is a formula to calculate resonance energy. Delta HF naught is what? Enthalpy of formation. And experimental or actual value of delta HF naught is given to you in the question. So if they say that the enthalpy of formation of a substance is so and so kilojoule per mole, that means that is the actual value of the delta H formation. Whatever is given in the question for enthalpy of formation is the actual value. And this value, that is delta HF theoretical, is nothing but the calculated value as per our formulae and the Hess law equations which we write. So when we are trying to calculate or when we are trying to deduce the value of enthalpy of formation of a species using data of other equations, then we say that the value which we obtain is called the theoretical value of enthalpy of formation. That means whatever is given in the question is always going to be the actual or the experimental value of enthalpy of formation. And whatever is going to be calculated by us is called the theoretical value of enthalpy of formation. If I take the difference, then I say that the value which I get is called resonance energy. Also, if I have data in terms of reaction, let's say formation data is not given, data is given for some reaction, then also we can find out using this formula, that is delta H of reaction, enthalpy of the reaction, which is theoretical. Again, theoretical is something that we will be calculating in the sum, minus delta HR experimental. Experimental is always going to be that value which is given directly in the question. Always remember this. Experimental or actual value is always that piece of information which is given directly in the question. Whatever we calculate is going to be the theoretical value. Note down the formula, then I'll explain. Note down both the formulae. Done. Okay. Now let's go ahead with the numerical. Once we solve the numerical, it will be clear to you. This R stands for reaction. Which type of reaction? It could be combustion reaction, it could be hydrogenation reaction. So if you come across these words, combustion, hydrogenation,
in the question that clearly indicates that the reaction, the delta H of reaction is given. So either the reaction will be a combustion reaction or the reaction will be a hydrogenation reaction. Depending on what is given, we'll be using the formula. That means for the question, either we'll have to use this formula or we will have to use this formula. Both will not be used in the same sum. Any one formula is going to be used for a particular sum. Okay. So another important point is this: greater the magnitude of resonance energy, higher is the stability of the molecule. Please note down. Sir, can you go a bit up? Huh. Done, sir. Okay. Greater the magnitude of resonance energy, higher is the stability of the molecule. They may ask you like this, which has a higher stability, which is more stable. So then you will have to compare the resonance energies. That to only the magnitude. That means you have to take modulus and then compare. Okay. Copy the question, then I'll explain. This is the first question based on resonance energy. Copy this. सर थोड़ा सा नीचे है।
Okay, let's start this sum. Now, whenever you come across questions where multiple figures are given, that is multiple data related to enthalpies are given, then multiple values of enthalpy are given. That means we'll have to write down the equations. Which equations? The chemical equations. Like we have already discussed earlier. We arrive at the necessary target equation. And before arriving at the target equation, we also note down the other equations and the corresponding values of enthalpies. So one by one, let's note down the chemical equations. First one. Which is the first one? The standard molar enthalpy of formation of cyclohexane. Okay. So standard molar enthalpy of formation of cyclohexane is given as minus 156 kilojoule per mole. This can be written in the form of a chemical equation, which is shown by equation 1. Cyclohexane is C6H12, right? This is cyclohexane. Either you write this or you write this, both mean the same. Okay. So I have written the equation for formation of cyclohexane. Formation, why? Because in the question they have given about formation of cyclohexane. So I'll write this cyclohexane. C6H12 is cyclohexane. 1 mole has to be kept because formation means 1 mole of the product must be formed. And I have accordingly balanced the reactants. That is, I have adjusted the coefficients of the reactants. Carbon and hydrogen will be the reactants. Carbon must be taken in the solid form. Hydrogen must be taken in the gaseous form. Because we have learned the standard states. So this is the first equation. Delta H1 naught is the enthalpy change, which is already given to you. The value of delta H1 naught is given as minus 156 kilojoule. Minus 156 kilojoule. So I can use that value. So delta H1 naught is given as minus 156 kilojoule. Fine. I'm not putting it right now. You can put it later. I've just written it as delta H1 naught. Second. What is second? Second is what? Standard molar enthalpy of formation of benzene. So benzene is C6H6. So I can write this equation. Again, 1 mole of benzene has to be formed because it's formation. Carbon and hydrogen are the elements. So this is going to be the chemical equation representing formation of 1 mole of benzene. Note down the equations. Okay, next. The standard enthalpy of hydrogenation of cyclohexene is minus 119 kilojoule. Now we will write the equation corresponding to this. Hydrogenation means I will react it with 1 mole of hydrogen. And it is hydrogenation of cyclohexene. Cyclohexene has to be reacted with 1 mole of hydrogen. What is cyclohexene? Cyclohexene is C6H10. That is this. This will be cyclohexene. If I react cyclohexene with 1 mole of hydrogen, what happens is this double bond goes away. Cyclohexane. So this is a reaction. This will be the reaction.
सर वो डिस्टर्बेंस फिर से आ रहा है। कौन है ये? अब म्यूट पे रहो, तो जिसके भी बैकग्राउंड में नॉइस हो रहा है। सर जील एकेडमी से ही है। झील एकेडमी। ओके, so this is the third equation. Write down the third equation. That is the one which I showed you just now. That is hybridization of cyclohexene. सर आप उनको म्यूट कर सकते हैं। Now see, once you have written the equations, you will have to identify your target equation. Target equation is what? Target equation will be that which will help us calculate the resonance energy ultimately. Because the question has asked us to calculate the value of resonance energy. Now, molar enthalpy of formation of benzene is given to you as what? 49 kilojoule per mole. This value is given to you as the enthalpy of formation of benzene. Now I told you today itself that whatever value is given in the question is going to be the actual value. That means 49 kilojoule per mole is the actual value of enthalpy of formation of benzene. Okay, 49 kilojoule per mole is going to be the actual value of enthalpy of formation of benzene. Actual, experimental, जो actual है, जो दिया है. So this value is going to be the experimental or the actual value of enthalpy of formation of benzene, which means that I need to find out the theoretical value of formation of benzene. Once I know theoretical value, I can then find out the value of resonance energy by subtracting that from the actual value, because the formula is given to us already. This is the formula.
enthalpy of formation actual value minus enthalpy of formation the theoretical value. So actual is given to you in the question already. This is given to you in the question. For benzene, this is given to you. And how much is this? It is given as 49 kilojoule. That means we need to find out this. This has to be found out. So now we'll find out this. डेटा थोड़ी ना गिवन है. हाँ given है ना. Hess law use कर सकते हैं. So target equation is equation 2. Because I want to find out the enthalpy of formation of benzene, and enthalpy of formation of benzene is represented by equation 2. Okay. Now, to arrive at equation 2, I'll have to make use of equation 1 and equation 3. So let's see how. Now see, if we write these in the form of cyclic structures, it will be a bit easier for us to understand. So I have read it in the actual thing in the form of this. So equation 3 जो लिखा है C6H10, equation 3 जो लिखा है C6H10 plus H2 giving C6H12, उसी को मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, साइक्लिक फॉर्म. Correct? I can write this. Equation 3 can be written in this manner. And let it be delta H3 naught, the corresponding enthalpy value. Also, I can write equation 4 as this. This is another equation which I am right now creating, which is what? Hydrogenation of benzene. I can write this equation for hydrogenation of benzene. हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे 3 मोल्स लगा दूंगा तो तीनों के तीनों डबल बॉन्ड्स पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. So this can be written for hydrogenation of benzene. Now compare equation 3 and equation 4. जो ऊपर है वो 3 है, जो नीचे है वो 4 है. Compare equation 3 and equation 4. I can say that from equation 3, एक अगर डबल बॉन्ड है यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर, एक अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हाइड्रोजनेशन करने में डेल्टा H3 नॉट इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज. तो अगर 3 ऐसे रहेंगे, जैसे आपको नीचे दिख रहा है इक्वेशन 4 में, अगर 3 डबल बॉन्ड्स रहेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो फिर डेल्टा H4 नॉट की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 3 टाइम्स डेल्टा H3 नॉट आनी चाहिए, थियोरेटिकल, राइट. सो डेल्टा H4 नॉट जो है that should be 3 times delta H3 naught. Why 3 times? Because there are 3 double bonds present inside this benzene. तो अगर 3 डबल बॉन्ड्स को मैं रिड्यूस करूं, हाइड्रोजनेट करूं, तो 3 टाइम्स द वैल्यू आना चाहिए जो ऊपर आएगा, बिकॉज ऊपर का वैल्यू क्या है? एक बॉन्ड के लिए है, एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए. तो अगर एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए डेल्टा H3 इज द वैल्यू, तो 3 डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस करने के लिए 3 into डेल्टा H3 शुड बी द वैल्यू. तो उसी को मैंने लिखा है. So theoretically we can say that delta H4 naught is 3 times delta H3 naught. ये समझो कि 3 टाइम्स क्यों है. क्यों 3 टाइम्स है? एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने में वैल्यू इज डेल्टा H3 नॉट. तो 3 डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस करने में वैल्यू शुड बी 3 into डेल्टा H3 नॉट. Now value of delta H3 naught is given to you in the question directly. -119 देके रखा है, डाल दो वो तो डेल्टा H4 नॉट आ जाएगा. ये थियोरेटिकल वैल्यू आ गया किसका? हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन का, यानी डेल्टा H4 नॉट. So delta H4 naught is nothing but the theoretical value of hydrogenation of benzene, which is -357 kilojoule.
Now, the moment we have this, we can say that again equation 1 can be rewritten as this. This was cyclohexane बन रहा था, right? अगर 1 को आप देखोगे, 1 नहीं आपको दिख रहा है 1 अभी 1, and if you look at this, that is 4. Look at 4. This is equation 4. This is what? Equation 4. And this is equation 1 जो पहले ही लिखा था. This is 1. वन और 4 को देखो, प्रोडक्ट सेम है. 1 और 4 को देखो, प्रोडक्ट सेम है. अगर मैं 1 और 4 को देखूं और 1 माइनस 4 कर दूं, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, 1 माइनस 4 अगर मैं कर दूंगा तो मुझे 2 आ जाएगा, राइट? 1 माइनस 4, व्हाट इज 1? दिस इज 1. हाँ सर, 2 आ जाएगा. एंड व्हाट इज 4? दिस इज 4. 1 माइनस 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस मतलब क्या होता है? उस इक्वेशन को रिवर्स करना. सो 1 माइनस 4 व्हेन आई एम राइटिंग, दैट मींस ये 4 जो आपको भी दिख रहा है, इसको उल्टा करना पड़ेगा. यानी आपको ये इधर लाना पड़ेगा और ये इधर लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा -4. तो 1 माइनस 4 कर दूं मैं तो मुझे 2 आ जाएगा. एंड व्हाट इज 2? दिस इज 2. So 1 minus 4 is giving me 2. तो 2 का डेल्टा HF आ गया, मतलब यानी डेल्टा H2 नॉट आ गया. So 1 minus 4 कर दिया, put the values, तो डेल्टा H2 नॉट आ गया. But again it will be a theoretical value because whatever calculations we do are giving us theoretical values, यानी calculated values. सर अब ये पॉइंट रिपीटेशन है 1 - 4 2 कैसे होगा? 1 minus 4 2 कैसे हुआ? ओके, व्हाट इज 1? दिस इज 1 जो दिख रहा है अभी, ये वाला 1 है. व्हाट इज 4? दिस इज 4. अगर तुमको मैं प्रॉपर्ली मैथमेटिकल अलजेब्रा की तरह दिखाऊं तो यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाए. चलो, दिस इज 1 1, ये हो गया 1 का लेफ्ट हैंड साइड 6C plus 6H2. If I mention the states like this, तो ये हो गया 1 का लेफ्ट हैंड साइड माइनस 4 का लेफ्ट हैंड साइड. 4 क्या है? ये 4 है. 4 का लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये 4 का लेफ्ट हैंड साइड हो गया. गिविंग 1 का राइट हैंड साइड क्या है? दिस इज 1 का राइट हैंड साइड माइनस 4 का राइट हैंड साइड हो गया 1 - 4. मैथमेटिकल है पूरा, जैसे अलजेब्रा में इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही. अब देखो उसको ब्रैकेट को खोलो तो क्या आ जाएगा? just like maths. This minus this, so nothing, zero. अब केमिस्ट्री में तो ऐसा लिख नहीं सकते ना मैथ्स की तरह की जीरो. तो क्या करेंगे? अभी समझाने के लिए तुमको लिखा है मैंने. तो अभी इसको मैं रीअरेंज करूंगा. बेंजीन को प्रोडक्ट साइड. हाँ, ये माइनस दिख रहा है. वी कैन नॉट राइट माइनस इन केमिस्ट्री. माइनस एंड जीरो आर नॉट अलाउड. तो हम लोग क्या करेंगे? इसको उस तरफ लेके जाएंगे. तो ये माइनस बेंजीन जो दिख रहा है इसको इधर लिख देंगे, तो प्लस बेंजीन हो गया अभी. And this 6H2 minus 3H2 will be nothing but 3H2. So this is 1 - 4. अब 1 - 4 को अगर आप देखोगे
तो ये 2 ही तो है। हाँ सर ये ठीक है, आप कुछ रिवर्स बोल रहे थे। रिवर्स मतलब वही, अभी मैंने तुमको 1 - 4 करके दिखाया, अगर तुमको रिवर्स करना है तो मतलब क्या हो जाएगा, वही तो हुआ ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, इन दोनों को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो -4 हो गया। सो इफ दिस इज 4 देन व्हाट इज -4? दिस विल बी -4। हो गया -4 अभी। दिस थिंग इज कॉल्ड -4, हाँ सर इधर ही कंफ्यूजन हुआ। this will be -4. Now you can do 1 - 4. 1 - 4 मतलब क्या, ऑलरेडी ये -4 लिख दिया आपने, अब कर दो 1 के साथ 8, तो क्या हो जाएगा, वापस वही होगा जो किया था। What is 1? This is 1, 6C plus 6H2. So 6C plus 6H2, right? And -4 is this. मतलब ऐसा हो जाएगा 1 - 4। हो गया 1 - 4। वन माइनस 4 हो गया, अभी हो गया, कट गया ये। दिस इज 6H2, दिस इज 3H2, वापस वही होगा, फाइनली ये मिलेगा। सो 1 - 4 करने के तरीके दो है, या तो आप एक को रिवर्स कर दो तो माइनस हो गया, फिर ऐड कर दो उसके साथ, या फिर सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करो और राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करो, बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट। Okay, now we have obtained the value, that is this. अब ये क्या है, this is the theoretical value of delta H of naught of benzene, 201 किलोजूल। ये जो आया डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H4 करके, तो डेल्टा H2 अभी जो आया that is what the theoretical value, because आपने निकाला है कैलकुलेट करके, टारगेट इक्वेशन तक पहुंच के जो निकालते हैं उसको बोलते हैं theoretical। Now use the formula of resonance energy. Actual is given to you in the question, जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है वो एक्चुअल कहलाता है। कैलकुलेट अभी निकाला हम लोगों ने 201, पुट द वैल्यूज, तो ये आ गया रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू फाइनली। हाँ व्हिच वन? तो 1 - 4 जो हमने किया उसमें से एक इंफॉर्मेशन एक्चुअल है ना? नहीं, आई हैव नॉट यूज्ड एनीथिंग एक्चुअल, 49 तो यूज किया ही नहीं मैंने। चलिए वो 156 जो है, हाँ -100 क्या है, -100 तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना सर, तो वो तो एक्चुअल नहीं नहीं दैट इज ओके, वो ठीक है, मैं उस स्पीशीज की बात कर रहा हूँ जिसके लिए रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है, उसका जो वैल्यू देके रखा है दैट इज एक्चुअल। बाकी के लिए तो एक्चुअल थियोरेटिकल बोलोगे नहीं ना कुछ ऐसा, बाकी के लिए तो एक्चुअल बोलो या थियोरेटिकल बोलो, बात तो वही हुई ना। ये तो जिस जो रेजोनेंस शो कर रहा है उसके लिए एक्चुअल और थियोरेटिकल अलग अलग आ रहे हैं। बाकी कंपाउंड्स के लिए एक्चुअल एंड थियोरेटिकल विल नॉट चेंज। सर तो आप C6H6 का निकाल रहे, तो फिर आप दूसरे कंपाउंड्स के लिए आप एक्चुअल ले थियोरेटिकल ले नहीं करेंगे, तो बात वही हुई ना, बिकॉज़ बाकी कंपाउंड्स के लिए तो एक्चुअल और थियोरेटिकल सेम ही है ना, इट इज इक्वल। ओके, बस C6H12 का वैल्यू हमें दो जगह पे अलग अलग रहेगा। हाँ दैट इज बिकॉज़ बेंजीन इज शोइंग रेजोनेंस, जो भी चीज रेजोनेंस दिखाती है उसका एक्चुअल और थियोरेटिकल वैल्यूज अलग रहेंगे हमेशा। ओके सर, समझ बाकी कंपाउंड जो रेजोनेंस नहीं दिखा रहे उनका तो सेम ही रहेगा ना, एक्चुअल थियोरेटिकल फर्क नहीं है कोई उनका, तो उनको आप थियोरेटिकल बोलो या एक्चुअल बोलो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ विल बी द सेम, आइदर यू कॉल इट थियोरेटिकल और यू कॉल इट एक्चुअल। लेकिन जो चीज रेजोनेंस दिखा रही है, जो मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है, उसका एक्चुअल और उसका थियोरेटिकल हमेशा अलग रहेंगे। So finally I have obtained the answer. This is the value of resonance energy. सर आप ये क्वेश्चन एक बार ब्रीफ कीजिए ना। हाँ, so वही है कि पहले हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है उसके लिए इक्वेशंस लिखने, थियोरेटिकल इक्वेशंस, प्रैक्टिकल इक्वेशंस, ऐसा अलग से कुछ होता नहीं, इक्वेशन इक्वेशन ही होता है। तो इक्वेशन का मतलब केमिकल रिएक्शन होता है,
जो हम लोग लिखते हैं फॉर्मेशन के लिए या कंबस्शन के लिए या हाइड्रोजनेशन के लिए, जो भी रिएक्शन, तो आपको वो लिखना है। ध्यान में ये रखना है कि जो फॉर्मेशन हो तो उसका प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल हो। यहाँ पे फॉर्मेशन दिया गया है साइक्लोहेक्सेन का और बेंजीन का, तो मैंने साइक्लोहेक्सेन के लिए भी इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन 1 है फॉर्मेशन के लिए। बेंजीन के लिए भी लिखा है फॉर्मेशन का इक्वेशन, व्हिच इज इक्वेशन नंबर 2। कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा एच का वैल्यूज मैंने डेल्टा H1 डेल्टा H2 ऐसा लिख दिया है। एंड there is another information which is given to me, that is hydrogenation of cyclohexene. हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराना ताकि डबल बॉन्ड्स गेट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड्स। वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। एंड इफ आई वांट टू राइट द स्ट्रक्चर्स, आई कैन राइट द स्ट्रक्चर्स आल्सो डायरेक्टली। तो स्ट्रक्चर्स भी मैंने नीचे इसलिए लिख के दिखाए हैं। अब क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। जो रेजोनेंस एनर्जी इसका पूछा जाता है उसके लिए हम लोग को हमेशा थियोरेटिकल और एक्चुअल दो अलग अलग वैल्यूज देखने होते हैं। बेंजीन के लिए बोला है तो बेंजीन का थियोरेटिकल वैल्यू और बेंजीन का एक्चुअल वैल्यू देखना पड़ेगा। थियोरेटिकल वैल्यू हमेशा वो होता है जो हम लोग अराइव करते हैं, यानी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल वैल्यू वो होता है जो क्वेश्चन में दिया रहता है। एक्चुअल क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में बेंजीन के लिए क्या देखिए रखा है यहाँ पे 49। सो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन के लिए 49 किलो जूल है, व्हिच मींस दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो उसको हाथ मत लगाओ, उसको अलग से रख दो एक्चुअल जो है बेंजीन का। ओके, कमिंग टू थियोरेटिकल। Theoretical will be what? Delta H2 naught. Why delta H2 naught? Because delta H2 naught is giving me the enthalpy of formation of benzene represented by equation number 2, because I have 1 mole of benzene on the product side. So that particular equation will correspond to the formation of benzene. तो उसके लिए जो वैल्यू है वो मुझे निकालनी है। वो थियोरेटिकल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग हेस लॉ का यूज करेंगे। हेस लॉ क्या होता है? बाकी इक्वेशंस को यूज करके टारगेट इक्वेशन तक पहुंचना, उसको ही बोलते हैं हम लोग हेस लॉ का एप्लीकेशन। तो बाकी कौन से दो इक्वेशंस है यहाँ पे 1 और 3, these are the other two equations, which means I have to use equation 1 and equation 3 both in order to arrive at equation 2. So equation 1 को वापस मैंने लिखा है अलग एक फॉर्म में, that is in this manner I can write equation 1, right? This I can write equation 1, that is structure ड्रॉ करके साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है मैंने अभी। तो फॉर्मूला लिखने के बदले में मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, उसको इक्वेशन 1 बोला है। इक्वेशन 3 जो है उसको भी मैंने स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखा है, यानी C6H10 के बदले में I can write this structure. Instead of writing C6H10 I can write this structure, correct? साइक्लोएल्कीन है ये, C6H10 is what? साइक्लोहेक्सीन। अब आपको तो IUPAC से मालूम है कि साइक्लोहेक्सीन मतलब क्या होगा? साइक्लिक मेंबर का एक रिंग बनेगा 6 कार्बन एटम्स वाला एंड बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा, सो दैट्स व्हाट आई हैव कॉल्ड साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो उससे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद क्या मिलेगा? ये मिलेगा। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज C6H12 मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आप देखोगे तो उसको ही मैंने 3 को ही वापस मैंने लिखा है स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में। जो यहाँ पे मैंने 3 लिखा था उसी 3 को मैंने वापस लिखा है स्ट्रक्चर के फॉर्म में, व्हिच इज दिस। नाउ आई सेड दैट अगर मैं एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराने के लिए डेल्टा H3 नॉट एंथैल्पी चेंज आता है, तो बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड्स है, तो 3 डबल बॉन्ड्स को मैं अगर हाइड्रोजनेट करूं तो 3 into डेल्टा H3 नॉट आना चाहिए। तो डेल्टा H4 नॉट का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 3 times डेल्टा H3 नॉट। तो वही लिखा है मैंने, डेल्टा H3 नॉट का वैल्यू इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। तो डेल्टा H4 नॉट का वैल्यू आ जाएगा 3 times डेल्टा H3 नॉट। नाउ आई सेड इक्वेशन 4 का है डेल्टा H4 नॉट, उसको देखो और इक्वेशन 1 को देखो, और फिर मैंने बोला 1 - 4 करेंगे तो 2 आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली मैं टारगेट इज टू रीच 2। इतना कुछ किया क्यों? 2 तक पहुंचने के लिए ही तो किया ना। तो 2 आ गया। व्हाट इज 2? 2 इज दिस, जिसको बॉक्स में डाला है मैंने वो 2 है आपका। तो 1 - 4 किया तो 2 आ गया, तो डेल्टा H2 नॉट भी आ जाएगा, डेल्टा H1 नॉट माइनस डेल्टा H4 नॉट आ गया डेल्टा H2 नॉट। Now I can calculate the value of resonance energy, which is actual minus theoretical. Actual तो क्वेश्चन में देके रखा था, उसको हाथ लगाया नहीं हम लोगों ने, ये theoretical आ गया, so 1 - 4 कर दिया अभी।
and ultimately I put the values of actual and theoretical, so that I get the value of resonance energy. So minus 152 kilojoule is the value of resonance energy. Okay, another question, try this one. C2H4 प्लस H, इसका हाइड्रोजनेशन दिया है एंड बेंजीन नीचे दिया है, बेंजीन का हाइड्रोजनेशन भी दिया है. Okay. And again they're asking you to find out the value of resonance energy of benzene. अब देखो इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मेशन का डेटा नहीं है, किसी भी चीज का फॉर्मेशन का डेटा नहीं है, यानी फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला अभी काम नहीं आएगा. तो अभी कौन सा वाला आएगा? रिएक्शन वाला. यस, अभी वाला आएगा, दिस वन. रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच आर थियोरेटिकल माइनस डेल्टा एच आर एक्सपेरिमेंटल. अभी ये वाला आएगा. अब आर क्या है? रिएक्शन है. कौन सा रिएक्शन है? या तो कंबस्शन है या हाइब्रिडेशन है. अब दोनों में से यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है हमारे क्वेश्चन. तो ये क्या है? कंबस्शन तो नहीं है, ये तो हाइड्रोजनेशन है. रिएक्टिंग विद H2 इज हाइड्रोजनेशन. ओके, नाउ लुक एट द सेकंड इक्वेशन. बेंजीन का हाइड्रोजनेशन दिखाया गया है और उसके बाजू में वैल्यू देके भी दिखा है, डेल्टा H2 इज इक्वल टू माइनस 49.2 किलो कैलोरी. अब क्वेश्चन में ये वैल्यू ऑलरेडी बेंजीन के लिए देके रखा है. So what is this? Actual or theoretical? Actual. This is the actual value of hydrogenation of benzene. Because question में जो दिया है बेंजीन के लिए वो हमेशा एक्चुअल होता है, यानी बेंजीन नहीं, जो भी आपका मॉलिक्यूल है जो रेजोनेंस दिखा रहा है उसके लिए जो भी क्वेश्चन में वैल्यू देके रखा है वो एक्चुअल होता है. कैलकुलेट तो हमें करना होता है. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? बेंजीन का डेल्टा एचएफ लेके कैलकुलेट नहीं, डेल्टा एच नहीं लेना है ना. अभी तो हाइड्रोजनेशन का डेटा दिया, मतलब हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा. बेंजीन का यहाँ पे एक्चुअल क्या देके रखा है? हाइड्रोजनेशन देके रखा है ना, डेल्टा H2 जो है. तो डेल्टा H2 इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन व्हिच इज गिवन टू अस एज माइनस 49.2 किलो कैलोरीज. इसका मतलब क्वेश्चन. हाँ सर, ये साइक्लोहेक्सेन का हाइड्रोजनेशन है या फिर बेंजीन का? C6H6 है, मतलब बेंजीन है ना सर. बट लास्ट क्वेश्चन में C6H10 का हाइड्रोजन. दैट वाज साइक्लोहेक्सीन, करेक्ट. दैट वाज नॉट बेंजीन. उसमें बेंजीन का हाइड्रोजनेशन दिया नहीं था. अच्छा, ईन था क्या? ओके सर. वो साइक्लोहेक्सीन था, तो C6H10 था वो. दैट वाज Okay, नॉट sir. बेंजीन का हाइड्रोजनेशन. बेंजीन का हाइड्रोजनेशन अगर होगा तो C6H6 होगा प्लस 3H2, ये वाला इक्वेशन होगा. सो यहाँ पे वो ये क्या रखा है? हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन minus 49.2 kilocalories. Okay, so this is the actual value of hydrogenation. अब हमें theoretical value निकालना है. क्यों निकालना है? Because actual value तो देख के रखा है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है बेंजीन के लिए वो होता है एक्चुअल. तो बेंजीन के हाइड्रोजनेशन के लिए the value is given as minus 49.2 kilocalories. So I have to find out the theoretical value of hydrogenation of benzene. How will I find out that? By using some other equation which is given. यहाँ पे दो इक्वेशंस देके रखे हैं, 1 और 2, यानी 1 को यूज करना है मुझे, क्योंकि 2 तो यूज कर नहीं सकता मैं. 2 तो वैसे भी एक आपका एक्चुअल वैल्यू है, तो उसको तो हाथ लगाना होता नहीं है. बेंजीन का जो भी एक्चुअल वैल्यू होता है उसका हाथ लगाना नहीं होता है, इसको छोड़ देना. जो रेजोनेंस आएगा वो भी हाइड्रेशन ऑफ बेंजीन का ही एक रिएक्शन आएगा. हाँ, तो रेजोनेंस एनर्जी तो फाइनल, वो तो अल्टीमेटली है. पहले तो थियोरेटिकल वैल्यू निकाले.
थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन कैसे थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट? निकालने के लिए जो हमें टारगेट रिएक्शन चाहिए वो भी मतलब हाइड्रेशन ऑफ बेंजीन जैसे हाँ, इट्स हाइड्रोजनेशन ओनली, यस ऑब्वियसली। सो हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन अगर मुझे निकालना है थियोरेटिकल वैल्यू, उसके लिए मुझे ऐसा कुछ यूज करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में देके ऑलरेडी रखा हो, लेकिन कुछ अलग चीज, यानी जो ऑलरेडी आपको बेंजीन का इंफॉर्मेशन है वो आप यूज नहीं कर सकते, जो दूसरी चीज देके रखी है उसका इंफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। सो इफ आई लुक एट दिस सम, यहाँ पे दो इक्वेशंस है, एक C2H4 के लिए और एक C6H6 के लिए। अब C6H6 वाले के लिए जो दिया है वो तो आप उसको हाथ लगा नहीं सकते, बिकॉज बेंजीन इज C6H6। बेंजीन का हाइड्रोजनेशन के लिए ऑलरेडी इट इज गिवन एज -49.2 किलो कैलोरीज, तो वो एक्चुअल हो गया। द मोमेंट समथिंग इज एक्चुअल फॉर बेंजीन, डोंट टच इट, कीप इट असाइड, फॉरगेट दैट, वी विल यूज दैट एट द एंड। तो उसको भूल जाओ, तो एक्चुअल लिख के उसको भूल जाओ। तो मैंने एक्चुअल लिख दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है एरो बना के मैंने एक्चुअल लिख दिया है। लिख के क्या करना है, उसको भूल जाना है, उसको बारे में सोचना नहीं होता है। सोचना किसके बारे में होता है फिर, जो बाकी क्वेश्चंस दिए गए उनके बारे में। नाउ लुक एट दिस, C2H4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, as per knowledge of IUPAC nomenclature I can write this, and this same equation can be written in this manner, correct? इथीन है, डबल बॉन्ड है, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो अभी मैं बोल सकता हूं एक बॉन्ड जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए डेल्टा H इज -32.7 किलो कैलोरीज। अगर मेरे पास 3 डबल बॉन्ड्स आएंगे तो उनको हाइड्रोजनेट करने के लिए आई शुड थियोरेटिकली नीड 3 × -32.7 किलो कैलोरी, करेक्ट? यस एक अगर डबल बॉन्ड है तो उसको 32.7 डेल्टा H है, तो अगर 3 डबल बॉन्ड्स है तो 3 × -32.7 किलो कैलोरी। नाउ व्हाई 3? बिकॉज़ बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स है, तो हम लोग बेंजीन के हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बेंजीन के हाइड्रोजनेशन की बात करूं, ये है बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स, तो इनको मैं अगर हाइड्रोजनेट करना चाहूं तो मतलब ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तीनों को ही सिंगल बॉन्ड्स में बदलना है। तो उसके लिए मुझे -32.7 × 3 कर दूंगा तो आ जाएगा वैल्यू, तो वही किया है। तो अगर मैंने वो किया है तो ये आ जाएगा। करेक्ट? So, if for hydrogenating 1 mole of this, I need this. Then for hydrogenating 1 mole of C6H6, which has 3 double bonds, this should be the value of enthalpy change. -98.1 आ जाएगा। अब ये क्या है, ये तो थियोरेटिकल है, हम लोगों ने निकाला है मल्टीप्लिकेशन करके, जबकि क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू ऑलरेडी देके रखा है कुछ और, विच इज -49.2 किलो कैलोरी। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगा। So resonance energy is this. Okay, any doubt? सर हम लोग मतलब दूसरा इक्वेशन फॉर्म किस बेसिस पे करेंगे, मतलब वो कैसे सोचेंगे? कौन सा? सर हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है ना, तो वो कैसे सोचेंगे कि कौन सा इक्वेशन फॉर्म करें? जो बाकी इक्वेशन देके रखा है उनको यूज करके करो। जैसे यहाँ पे 1 देके रखा है C2H4 का, इसके बाद करें क्या, वो कैसे आएगा? मतलब तुम्हें अल्टीमेटली टारगेट इक्वेशन तक पहुंचना है। सो टेल मी व्हाट इज द टारगेट इक्वेशन इन दिस केस। टारगेट इक्वेशन तक पहुंचना पड़ेगा ना। तो टारगेट इक्वेशन कौन सा होगा, या तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा या तो फिर बेंजीन का कोई रिएक्शन होगा। अब इस क्वेश्चन में फॉर्मेशन की कोई बात नहीं की जा रही है, तो फॉरगेट फॉर्मेशन, डोंट थिंक ऑफ फॉर्मेशन नाउ। इसका मतलब नाउ यू नीड सम रिएक्शन। व्हिच रिएक्शन विल यू थिंक ऑफ? या तो कंबस्शन या तो हाइड्रोजनेशन। अब कंबस्शन इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि यहाँ पे कंबस्शन के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो इसके लिए हाइड्रोजनेशन।
किसका हाइड्रोजनेशन? जो चीज का रेजोनेंस एनर्जी निकालना है उसका हाइड्रोजनेशन। तो क्या है वो है बेंजीन। सो आई कैन राइट इन दिस मैनर। सो दिस इज गोइंग टू बी माय टारगेट। टारगेट इक्वेशन ये हो जाएगा फिर। करेक्ट, दिस विल बी माय टारगेट इक्वेशन। तो यहां तक पहुंचना है मुझे, बस और कुछ नहीं। कैसे पहुंचूंगा? यूजिंग द इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे एक ही इक्वेशन देके रखा है आपको, जो फर्स्ट वाला है, बिकॉज सेकंड वाला तो आपका टारगेट इक्वेशन है ना, तो सेकंड वाला तो ऑलरेडी दे हैव गिवन। सो फर्स्ट को यूज करके आपको मतलब पहुंचना है टारगेट तक, बिकॉज सेकंड इज ऑलरेडी योर टारगेट। तो यू हैव ओनली वन चॉइस कि फर्स्ट को यूज करो, और कोई इक्वेशन तो है नहीं यूज करने के लिए। तो फर्स्ट को यूज करने के लिए क्या देखेंगे? बॉन्ड्स को देखेंगे, कितने बॉन्ड्स हैं। सो C2H4 में एक ही डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए इतना, तो 3 डबल बॉन्ड्स को हाइड्रोजनेट करने के लिए कितना। दैट इज हाउ इट इज। ऑलराइट, नाउ कैलोरीफिक वैल्यू। सर हमें बॉन्ड्स के बेसिस ही वो डेल्टा एच का वैल्यू हाँ, फाइंड करना है। यस यस, थियोरेटिकल, वो थियोरेटिकल होगा। कैलोरीफिक वैल्यू, दिस वाज लेफ्ट आउट। ये एक्चुअली कंबस्शन के वक्त करा देना चाहिए था। सो आई कैन राइट द एनर्जी रिलीज्ड when सर पार्ट टेस्ट में कहा था करेक्ट आप बता सकते लेक्चर 12 सर मतलब कौन सा टॉपिक था? वही पूरा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, डाइल्यूशन, सॉल्यूशन, लैटिस एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जीज, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। फोकस प्रॉपर्ली ऑन हेस लॉ, उस पे क्वेश्चन से काफी सारे। सर जो बुकलेट है ना रेजोनेंस वाला, सर उसमें मतलब फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट और सेकंड लॉ पे है, बट उसमें वैसा कुछ डेल्टा एच एफ सब पे क्वेश्चंस नहीं है।
और जो सेकंड सेक्शन है वो थर्ड लॉ भी इन्वॉल्व करता है, तो क्या करें? नहीं बट ज्यादातर क्वेश्चंस जो इस पार्ट टेस्ट में है दे आर बेस्ड ऑन एंथैल्पीज, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री में जो भी एंथैल्पीज सीखी हम लोगों ने वो सब। तो वो सब का कहाँ से करें सर उसमें, क्योंकि बस थर्मोडायनामिक्स पे है, थर्मोकेमिस्ट्री पे नहीं। So you refer to my notes and you keep solving questions from that resonance booklet which sir had sent. बिनानी सर ने डाला था ना ग्रुप पे रेजोनेंस वाला वही बोल बुकलेट। रहा हूँ, वो रेजोनेंस वाले बुकलेट में है। हाँ उसमें तो है सर क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री दोनों है इसमें। हाँ वो थर्मोकेमिस्ट्री में थर्ड लॉ फोर्थ लॉ भी है क्या? थर्ड लॉ तो नाउ वी विल फिनिश, अभी करेंगे हम लोग, बट थर्ड लॉ इज नॉट देयर फॉर द पार्ट टेस्ट। नरेंद्र अवस्थी से प्रैक्टिस करो अगर तुमको ऐसा है चाहिए तो, उसमें बहुत क्वेश्चंस हैं। सर स्क्रॉलर फीचर है। हाँ अभी आई विल गिव अ क्वेश्चन, वो डिस्कस कर लेते हैं। छोटा था उठा मैं जब मैं पता नहीं 2 साल का था। ओके अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कॉमन गलती क्या होती है वो बताए तो। क्या है यहाँ पे लिखा? हीट्स ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेन एंड बेंजीन आर गिवन व्हिच हैज अ हायर एफिशिएंसी। अब देखो मैंने क्या लिखा है, हायर द कैलोरीफिक वैल्यू हायर इज द एफिशिएंसी। नाउ व्हाट पीपल डू, they will directly compare these values and then they will say this has got a higher efficiency, जिसका ज्यादा है। तो क्या करेंगे लोग, most of the people directly say that because ये वैल्यू ज्यादा है बेंजीन का, so benzene will be having a higher calorific value and hence a higher efficiency. But you cannot directly compare like this because ये देखो पर मोल दे के रखा है, पर ग्राम या पर किलोग्राम नहीं दिया है। चेक दिस, पर मोल दे के रखा है क्वेश्चन में, और हमने डिफाइन क्या किया है कैलोरीफिक वैल्यू को, when 1 gram or 1 kilogram of a fuel undergoes combustion, which means हमें ग्राम के हिसाब से देखना है या किलोग्राम के हिसाब से देखना है। I cannot say कि मोल 1 मोल के हिसाब से कितना है। So that is the common mistake which people make. So I have to convert. तो मोलर मास के हिसाब से हाँ, कुछ कर सकते हैं। हाँ वही करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको पर ग्राम चाहिए ना। So I will say that calorific value, or I will say like this, delta H combustion
for 1 gram of ethane will be equal to how much? ये combustion ethane का -1560 किलोजूल पर मोल है. So By minus 30,000. 1560 ये 1 मोल के लिए, तो 1 ग्राम के लिए अपॉन द मोलर मास हो जाएगा, किलोजूल में आ जाएगा ये. This will be the enthalpy of combustion for 1 gram, right? Which is equal to -50. -52 kilojoule. Similarly, delta H combustion for 1 gram of benzene will be how much? -3268 upon 78. 78 is the molar mass of benzene. 41, so minus 41.89 kilojoule. तो कहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है 1 ग्राम के लिए? यहाँ पे ना 52 इज मोर देन 49, 41. सो 52 इज मोर देन, तो इसके लिए अभी आप बोलोगे कि कैलोरीफिक वैल्यू इसका ज्यादा है इथेन का, एंड हेंस इट इज मोर एफिशिएंट. सो दिस हैज अ हायर एफिशिएंसी. तो ये पर मोल में नहीं कर सकते, बी वेरी केयरफुल. ये गलती करते हैं लोग. ओके, एक मिनट क्वेश्चन दिखा दो. सर हम लोग पर मोल में से उल्टा कंसिडर कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, डोंट डू दैट. एग्जैक्ट मोलर मास के बिना हाउ विल यू डू? नहीं सर, एफिशिएंसी कंपेयर करने में अगर उसका नहीं, पर नहीं, मोल कम होगा तो वो एफिशिएंट है. नहीं, ऐसा वी कैन नॉट से ना. इट विल डिपेंड ऑन द मोलर मास. हाउ कैन वी से दैट? हाँ सर. मोलर मास का वैल्यू पता नहीं जब तक है तब तक वी कैन नॉट टेक अ डिसीजन. वो डिवाइड करके ही पता चलेगा एग्जैक्ट वैल्यू कितना है. 0.5 से भी हाँ. इधर उधर हो सकता है ना. हाँ सर, समझ गया. ओके, फिर तो जिसका ज्यादा हो जाएगा मॉड का वैल्यू वो ज्यादा. हाँ. सो 40 -41 एंड -52 में से मॉड्यूलस लेना पड़ेगा. तो हायर एफिशिएंसी, क्योंकि ज्यादा रिलीज कहाँ पे हो रही है? ज्यादा रिलीज 52 है ना. माइनस जस्ट इंडिकेट्स की एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट्स ऑल. हाँ सर. तो कहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है? यहाँ पे रिलीज हो रही है ज्यादा एनर्जी. तो ये एक रह गया था, पहले ही ये करा देना चाहिए था. ये कंबस्शन का पार्ट है, बट दैट टाइम आई समहाउ फॉरगॉट. ओके, एंड नाउ द फाइनल थिंग. इसका एप्लीकेशन इतना कुछ नहीं है, बस एक है जो मैं अभी करा दे रहा हूँ. एक सम एक टाइप का आ सकता है, एंड देन इट्स ओवर. अच्छा, नेक्स्ट वीक से वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. तो आप थोड़ा मोल कंसेप्ट रिवाइज करके आइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा. स्टोइकियोमेट्री जो है, रिएक्शंस का पार्ट, वो थोड़ा बेसिक्स करके आने हैं. इतना फॉर्म हो रहा है, इतना रिएक्ट कर रहा है. ओके, अदरवाइज यू विल बी फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट. सर किसका? कौन सा चैप्टर सर है? कौन सा चैप्टर शुरू करें? केमिकल इक्विलिब्रियम. सर आप अपने क्या बोला, कौन सा रिवाइज करके आना? मोल कंसेप्ट, यानी जो रिएक्शंस वाला पार्ट है, स्टोइकियोमेट्री का जो पार्ट है ना, वो वाला. मतलब इतना डिटेल में नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड बी थरो विद द फैक्ट दैट इफ this many moles react, then how many moles of the product should be formed, and how many moles of the reactant are left behind. ये पता होना चाहिए. चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है, but you have to be thorough with that concept of moles.
the entropy of a perfect crystal और ऐसा कर सकते हैं of perfect crystals of all pure elements and compounds of all pure elements and compounds at absolute zero. What is absolute zero? 0 Kelvin. Yes, it is 0 Kelvin. Is 0. This is the third law of thermodynamics. इसका मतलब ये होता है कि the molecular motion stops at 0 Kelvin. Okay, practically we are not able to achieve 0 Kelvin, but it's a concept कि अगर 0 Kelvin तक कोई पहुंच गया तो molecular motion stops, and so we can say that entropy of that substance is 0. तो ये स्टेटमेंट है, मतलब 0 केल्विन पे एंट्रोपी क्या होती है? 0. इनडायरेक्टली ये है. अभी इस पे एक सम है, बाकी आपको कुछ पता नहीं, बाकी बस ठीक है. एक सम है एक टाइप का जो आ सकता है. सो क्वेश्चन इज क्वेश्चन सर 1 मिनट वापस तो दिखा सकते हैं. हाँ सर हो गया. परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब ये है कि उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, मतलब उसमें कोई एंट्रोपी को बढ़ाने या कम करने वाली चीज प्रेजेंट नहीं है. इट इज अ प्योर क्रिस्टल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. ओके. सर बट 0 केल्विन पे अगर सब कुछ मोशन स्टॉप हो जाता तो फिर परफेक्ट क्रिस्टल ही बनेगा. हाँ, भाई इसके लिए वर्ड परफेक्ट वापस रीएम्फसाइज किया जा रहा है. फाइन. सर पर 0 केल्विन में तो पार्टिकल तो अपना आइडेंटिटी लूज कर देगा ना. दैट इज व्हाई इट इज हाइपोथेटिकल ना. प्रैक्टिकली 0 केल्विन तक थोड़ी पहुंच सकते हैं. ओके. सर वो फॉर्मूला में डालेंगे डेल्टा एस के तो फिर वो 0 फिर डिनोमिनेटर में आएगा ना. हाँ, एग्जैक्टली. बट दैट इज डेल्टा एस ना, दैट इज नॉट एस. आई एम टॉकिंग अबाउट एस. एंट्रोपी. अभी देखो मैं तुमको बोलूंगा व्हाट इज योर एंट्रोपी एट दिस टेंपरेचर, यू विल से आई कैन नॉट डिफाइन इट. Entropy at a particular temperature cannot be defined according to second law. According to second law, we can just calculate delta S. मतलब जब वो एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे जा रहा है तब क्या चेंज इन एंट्रोपी हो रही है, या फिर सेम ही टेम्परेचर है लेकिन उसके अंदर कुछ आप दूसरा चेंज कर लो तो क्या चेंज हो रही है. सो वी कैलकुलेट डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. ये एस नहीं है. थर्ड लॉ क्या बोल रहा है? थर्ड लॉ एस की बात कर रहा है. इट इज नॉट चेंज इन एंट्रोपी, इट इज ओनली एंट्रोपी. एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी बोल रहा है वो. So this is delta S. This is not S. ये तो चेंज है ना. ओके. समझ में आया अभी क्या बोला मैंने? हाँ सर. डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी. अगर कोई चेंज हो रहा है सिचुएशन में तो क्या चेंज है एंट्रोपी में. बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर? कैन वी डिटरमाइन दैट यूजिंग सेकंड लॉ? नो, वी कैन नॉट. सो वो थर्ड लॉ बोल रहा है कि 0 केल्विन पे 0 केल्विन अगर टेम्परेचर है तो एंट्रोपी उस वक्त 0 है उसकी. तो 0 से आप बढ़ाओगे तो ही वो एंट्रोपी बढ़ेगा. दैट वे. सो क्वेश्चन करते हैं अभी. गिवन C is AT cube where A is a constant
T is temperature. And C is ये क्वेश्चन है. फिर एक बार पूरा क्वेश्चन लिखा है. Fine. Now see, what can we say? We can say according to second law of thermodynamics, ds is equal to dq upon t. And also I can say, ये second law मैं use कर रहा हूँ, ठीक है? dq is what? n c dt upon t, where c is the molar heat capacity and n is the number of moles of the substance. And क्वेश्चन में बोला है मोलार एंट्रोपी, तो मोलार कुछ भी है तो n को 1 डाल देंगे. एंड c is given to us as at cube. Now if I want to find out the value of entropy, यहाँ पे बोला ना एंट्रोपी निकालने बोला है, डेल्टा एस निकालने नहीं बोला है. तो एंट्रोपी या 10 केल्विन निकालने बोला है, मतलब आई कैन से इंटीग्रेट करना पड़ेगा. हाँ, आई कैन से बट दैट 0 to 10 करना होगा. फिर 0 to 10 करना. हाँ, अभी ना हमको 0 to 10 करना होगा, which means यहाँ पे 0 केल्विन टेम्परेचर के लिए I'll put, and here I'll put 10 केल्विन, and this will be S at 0 Kelvin and this will be S at 10 Kelvin. Right? So I can write this, if I integrate S at 10 Kelvin minus S at 0 Kelvin is equal to, ये T square हो जाएगा, right? So A T square का integral will be what? T cube upon 3, but ये limits भी है. So what will I put? 10 cube minus 0 cube. S at 10 Kelvin minus. Now S at 0 Kelvin is what? 0. According to third law, is equal to A by 3 into 10 raised to 3. Correct? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Also क्वेश्चन में देखो ये देके रखा है that C is equal to 0.042 at 10 Kelvin. अब C का वैल्यू 80 क्यूब भी है, तो C is equal to 80 क्यूब और C is also 0.042 at 10 Kelvin. तो 0.42 is equal to A into 10 क्यूब, यानी A का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा.
Put that value of A here. So 0.042 upon 1003 and यहाँ पे 20. ये कट जाएगा. So S at 10 Kelvin minus 0 is equal to 0.014, which means S at 10 Kelvin is equal to 0.014 joule per mole Kelvin. Okay. Thank you. I will send the notes. Chapter is over. Thank you, sir. Bye. So आप notes भेज दीजिए अभी. हाँ, I'll send. Thank you. Thank you.